Johari window, and it's a very important and very interesting topic for all the trainers and for all those people those who want to make a career in the field of HR, especially for training and development domain. As a trainer, we use this particular analysis for various purpose, and today I'm going to give you the overview of what is Johari window, how this particular Johari window analysis has been performed, and what is the significance of Johari window analysis in your corporate life. Let's go ahead. Can you see the presentation screen, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when we talk about Johari window, it is basically a model of different degree of openness between two people, and it is based on the degree of self disclosure and solicitation of feedback when sharing information with another purpose. So यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर आप ओपन रहते हैं, लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, काम करते करते लोगों को आपकी कुछ क्वालिटीज समझ में आती हैं. पीपल आइडेंटिफाई सम ऑफ योर good and bad qualities and some of your hidden qualities which are either known to you or probably you are not aware about it. So ये पूरी एनालिसिस उसी के ऊपर ही है. यहाँ पर एनालिसिस करते समय मेन ध्यान इस बात पे रखा जाता है कि आपको क्या चीजें पता हैं और कौन सी चीजें आपको नहीं पता हैं, उनका एक तरीके से एक समरी निकाली जाती है और उस समरी के बेसिस पे आपका पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाता है. जब आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलती है अपने बारे में जो अच्छी हैं या बुरी हैं, उस हिसाब से आप आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. यू कैन मेक अ सेल्फ इंप्रूवमेंट इफ यू गेट टू नो सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ public or which are not good in society, which are considered as bad or sometimes not considered as up to the standard. So that qualities you can remove and you can improve on those things and you can improve on those attributes if you know about those characteristics. So talking about Johari window, this was actually developed by two people. They are very famous people from the past called as Joseph Luft and Harry Ingham. Johari window model was devised by these American psychologists, and it was in 1955 while researching group of dynamics at the University of California in Los Angeles. They have devised this particular model. So the model was first published in the proceedings of Western Training Laboratory in Group Development by UCLA Extension Office in 1955 and was later expanded by Joseph Luft. तो ये आपने इसका नाम देखा, यहाँ पर जोहारी, इन दोनों के नाम से ही ये मॉडल डेवलप किया गया है. पहले दो लेटर यहाँ के ले लिए गए, जोसेफ लुफ्ट के और हैरी का HAR, और ये इन्होंने कंप्लीट करके इन्होंने इसको बना दिया जोहारी विंडो. अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेम. लुफ्ट एंड इनगैम, their Johari window model, that is Johari, after combining their first name Joe and Harry in early publication, the word appear as the Johari. यहाँ से ये फेमस हो गया, और फेमस होने के बाद आज अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाते हैं तो कंपलसरी जोहारी विंडो एनालिसिस किया जाता है, स्पेशली फॉर द एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग, द केबिन क्रू स्टाफ मेंबर ट्रेनिंग. Since I have conducted training program for the air hostess and the cabin crew members, so I had conducted this Johari window analysis over there. So this is compulsory done in those particular sectors to understand certain traits of the persons which are not known, probably that can harm to the organization. This is also been done to understand certain trait of the persons which are very good in terms of that particular job role, and certain traits which can be improved and can become further better. So all these things are conducted as a part of Johari window analysis. और एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एक जैसे आपने विंडो देखी है, विंडो को अगर चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उसी तरीके से जोहारी विंडो के चार क्वाड्रेंट्स होते हैं. ये क्या होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ. So the Johari window model is a simple and useful tool for illustrating and improving the self-awareness and mutual understanding between individuals within a group. आपस में लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बनती है आपस में कि नहीं बनती, नहीं बनती है तो क्या रीजंस हो सकते हैं, ये जोहारी विंडो एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनालिटी ट्रेट में कोई डिफरेंस हो सकता है, कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई काम करने में बहुत शांत है, तो ऐसे जब दो लोग साथ में मिलते हैं तो एग्रेसिव वाला पर्सन हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा. तो ये जोहारी विंडो एनालिसिस से चीजें क्लियर हो पाती हैं. सो द जोहारी विंडो मॉडल can be used
to assess and improve a group's relationship with other groups. जब आप ग्रुप में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, production department, marketing and sales department, these are small groups within the same organization, or you can call it as a functional departments. When they are working together, still there are some ego clashes. Why? Because these people have got some kind of uh, differences in terms of their thoughts, in terms of their wavelengths, in terms of the way of working, in terms of the personality characteristics, and in terms of the person whom they are reporting to. For example, a finance department person will report only to the chief of the finance staff. Similarly, in marketing department, the marketing manager will report to the senior person, whosoever is there in the marketing department. So likewise, there might be ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? दो ग्रुप के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, दो ग्रुप की आपस में बनती नहीं है. मार्केटिंग वाले बोलेंगे लॉजिस्टिक्स को कि ये टाइम पे सामान नहीं देते तो हम बेचेंगे क्या. कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार ईगो की वजह से होते हैं, कई बार ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से होते हैं. तो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है तो आपको जोहारी विंडो समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में यू आर नॉट जस्ट द इंडिविजुअल पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट you are working in a team, and the teams are represented in an organization as a functional teams. So functional teams जब बहुत सारी होती हैं तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जोहारी विंडो है. कई बार डेवलपमेंट के लिए भी, कि एक टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, एक टीम ने नहीं किया, दोनों के पास में सेम कॉम्पिटेंसी है, सेम स्किल है, तो इस जोहारी विंडो एनालिसिस के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड था, उन्होंने क्या परफॉर्म किया, और वो क्या कर सकते थे, उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, ये सारा असेसमेंट होता है. So the Johari model can also be used to assess and improve a group's relationship with other groups. ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को? Yes, sir. Okay. Let us now understand the influence of this particular model. इसका influence कहाँ पर है? So today the Johari window model is especially relevant due to modern emphasis on and influence of the following factors. First, soft skills. अब आपके ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जिनके पास में कम्युनिकेशन लेवल जो है थोड़ा एवरेज है या बिलो एवरेज लेवल का है, आपको उनको भी साथ में लेके चलना है. फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक्स में ड्राइवर जो लोग होते हैं, वो लोग तो जरूरी नहीं कि उनके पास फ्लुएंट इंग्लिश हो, आपको उनके साथ में भी काम करना है. क्लीनर है, उसके बाद जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं, उनका सॉफ्ट स्किल और आपका सॉफ्ट स्किल बीइंग अ मिडिल लेवल मैनेजर विल बी much different, and there is a huge gap between these skills. Behavior wise, you will see that the drivers have a different behavior. They will sometimes behave in an uncivilized profession, whereas you will be more inclined towards a civilized behavior, and then you will be more inclined towards the routine task and towards the schedules and other things. ड्राइवर को ऐसा नहीं है, ड्राइवर को आप बोलोगे यहाँ काम करना है वो करेगा. आपके केस में क्या, आपको एक शेड्यूल दिया जाता है. सो दीज आर द बिहेवियर. देन एम्पैथी की अगर बात करें, so you as a manager has to show more empathy towards the subordinates and towards the peers. आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने लोगों को एम्पैथी नहीं दिखाई तो चलेगा, बट आपने नहीं दिखाई तो हर कोई ऑब्जर्व करेगा आपको, बिकॉज यू आर द face of the organization, you are representing the organization, people are connected to you, people don't get an opportunity to meet the top management always, they only get an opportunity to interact with you. So in that case, they will see you as the face, and when they see you as the face of the organization, these are the skills which are required to be developed and inculcated in you over a period of time. Considering the job role, your job role and your behavior should resonate positively, and if it is not resonating positively, ultimately the consequences will be totally negative. So whatever you are doing, that will be reverberated and it will come to you. If you do good to others, the good will happen to you. If you feel good about others, people will have more trust and more faith in you. As a leader, these are the skills which are required to be developed, and for that the Johari window analysis is very suitable. Now let's understand about why we do. So as I said, we do it in order to understand and in order to go for the intergroup development. ग्रुप के अंदर, ग्रुप दो ग्रुप के बीच में लोगों में अच्छे से एक कॉपरेशन हो, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर हो, हार्मनी हो, और सिंक्रोनाइज टास्क होने चाहिए. कि अगर एडवर्टीजमेंट वाले ने कुछ काम किया है तो वो मार्केटिंग को पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स को पता होना चाहिए, प्रोडक्शन टीम रेडी होनी चाहिए. अगर ये सिंक में नहीं हुआ तो सारी चीजें जो हैं वो हैब्जर्ड हो जाएंगी. And then ultimately, if you want to unleash and if you want to achieve any goal, it will become very Herculean task. Now,
इंटरपर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो इस रोल पे हूं, मैं तो लोगों से क्यों बात करूं? बट एट द सेम टाइम, इफ यू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, people will remember you. Remember that people don't remember what you do to them. People won't remember how you talk to them, but people will always remember how you made them feel. आप लोगों को कैसा फील कराते हो, इस बात पे लोग आपको जिंदगी भर याद करेंगे। आज मैंने आपसे जो बात कही वो 2 दिन 3 दिन के बाद आप भूल जाएंगे, बट अगर मैंने आज आपको एक ऐसा फील करा दिया, आपको एक स्पेशल फील करा दिया, तो आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस चीज के लिए जोहारी विंडो एनालिसिस काफी अच्छी है, क्योंकि ये बताती है कि आप आपकी कौन सी स्किल को, कौन से डार्क एरियाज को डेवलप कर सकते हैं, विच आर द ब्लाइंड स्पॉट्स वेर इन यू कैन वर्क एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द ओपन अरेना। नाउ लेट्स सी use of Johari window. So Johari window soon became a very widely used model for understanding and training for the self awareness purpose. आपको खुद के बारे में कुछ पता नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज in one seminar of industry, and a lot of HR managers were attending that seminar. The other person who was the chair speaker, he was speaking from the mic, from the podium, and everyone was watching him. While during his speech, the person who was speaking from the mic, that was the guest speaker, and he is holding a very senior position today in a very renowned manufacturing company. He was just touching the mic in every 2 seconds and then touching his specs. Just not stopping over here, he was also coughing every now and then very oftenly, and it was creating a total different kind of noise and the disturbance was occurring. Such type of things unknowingly you do, which becomes unmanageable and unbearable for others. If you get to know such kind of traits, and if someone tells you about those things, you can definitely improve on that. Unless and until people tell you that while during the speech you shake, you fumble, you stammer, you look at here and there, your eyes are not looking towards the audience side. These are the things which are considered as the blind area. For that, the self awareness is required. For creating self awareness, सच एनालिसिस इज वेरी यूजफुल। लोगों को बोला जाता है कि ये 56 एडजेक्टिव्स हैं, आपसे रिलेटेड एक 56 एडजेक्टिव्स की लिस्ट बना दी जाती है और बोला जाता है कि इनको आप अच्छे से जानते हो, अब इनके बारे में ये क्वाड्रेंट में फिट करो कि ये कौन सी इनकी स्किल है जो आप जानते हो जो इनको नहीं पता, इनकी कौन सी स्किल है जो आप जानते हो इनको भी पता है, इनकी कौन सी स्किल है जो आपको नहीं पता बट इनको पता हो सकती है, इनकी कौन सी ऐसी स्किल है जो इनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो ये सारी चीजों का एनालिसिस जोहारी विंडो के थ्रू किया गया। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आज की तारीख में जोहारी विंडो एनालिसिस किया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। याद रखिए, आपके पास कहीं की भी डिग्री हो, एमबीए की या इसके बाद आपने पीएचडी भी कर लिया, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी उस जॉब रोल को मैच नहीं की तो लोग कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू सम वेब सीरीज, वेब सीरीज अभी बहुत सारी आई हैं, आप देखेंगे कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पंकज त्रिपाठी, वॉट एवर रोल इज बीन गिवन टू हिम ही गेट्स फिट इनटू दैट एंड देन पीपल एक्सेप्ट हिम फॉर दैट रोल। बट अगर उस जगह पे कोई दूसरा पर्सन बैठा दिया जाए, आई थिंक you may not be able to accept as an audience. There are other examples also which you need to find it out on your own. But why I'm giving you such examples? Because so that you can connect it very well and you can understand that yes, personality has got a major role in influencing the people. For example, in Indian cricket team we had Dhoni as the captain. Prior to that we had Saurabh Ganguly. Today we have Virat Kohli as the captain. He has all the qualities of a captain, but then as compared to Virat Kohli, today more number of team players believe in their own skills as well as they believe in other players. As a captain, I would find Rohit Sharma as more competent because I found his personality very cool for this particular role. There are people who love Virat Kohli as a player, but in my own opinion, I feel that Virat Kohli is too aggressive for holding that particular role, and when you become too aggressive you become impatient. So all these things are very much important, because if Virat Kohli like persons are too aggressive, there is a possibility that some players won't get any chance with just single failure, while some others will get untowards biased
support from the captain side. So all these things might happen. So for personality development, we do the Johari window analysis, improving the communications. If there is a communication difference, if people are not talking to each other, there is a ego clash. So in that case, we can use the Johari window to improve the communication and to make it cordial for everyone to work. इंटरपर्सनल रिलेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट लोगों के बीच में आपस में किस तरीके का क्या तनाव है, खिंचाव है या अट्रैक्शन है, ये सारी चीजें जोहारी विंडो बताती है और उसके हिसाब से आपको डेवलप किया जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कुछ दिन पहले मैं ट्रेनिंग लेने के लिए एक कंपनी में गया था और उस कंपनी में वहां के एक एचआर ने राउंड लेते समय जो प्लांट के बाहर का जो एरिया जहां पर गार्डन होता है, उस गार्डन में उसने दो गार्डनर्स को बैठे हुए बात करते हुए सुना। आराम से वो बात कर रहे थे और वो काम नहीं कर रहे थे। इस चीज से उन्होंने इमीडिएटली नोटिस किया और उन्होंने इमीडिएट उनको बोला कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको ये काम करना है। और उस टाइम पे उनकी आवाज थोड़ी सी ऊपर अप हाई पिच हो गई। थोड़ी देर के अंदर जो गार्डनर थे उन लोगों ने वहां पर एक तमाशा क्रिएट कर दिया। वो बोलने लगे कि हमें जबरदस्ती यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे थे और एचआर ने आके हमको डराया धमकाया। अब आप ये देखिए कि जब आप किसी लोअर रोल के पर्सन से या लोअर लेवल पे से बात कर रहे हैं तो आपको आपके लेवल, आपकी पिच, आपकी वॉइस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे इंटेंशन से बोल रहे होंगे, वॉट एवर द रीजन इज, even if that is with the good intent, people will take it negatively and then you won't be able to support and you won't be able to defend yourself. All these things are quite possible if you go through the Johari window analysis. Group dynamics, एक ग्रुप के अंदर कोई बहुत हाईली एक्टिव पर्सन है और बाकी के लोग जो है बिल्कुल लो एक्टिव हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो जो लो एक्टिव है उसकी वजह से पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस अफेक्टेड होती है। आई गिव यू अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल। पबजी आप सभी लोगों को पता होगा, कई लोगों ने खेला भी होगा। तो पबजी क्या होता है, जब एक टीम में आपको ऊपर से एक जगह से प्लेन से कुदाया जाता है, पैराशूट से आप एक नीचे जगह पे गिरते हैं और गिरने के बाद आप लोगों की टीम बनी होती है, उसके बाद भी लोग अलग अलग भागने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, एनिमी इसका एडवांटेज ले लेता है। तो ग्रुप डायनेमिक्स यही है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा तो एनिमी आपस में आपकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो स्ट्रेन है, उसका फायदा उठाकर कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में आपसे आगे निकल जाएगा। और ये चीजें जो होती हैं ये टाइम टू टाइम पे होती रहती हैं। तो ग्रुप डायनेमिक्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, टीम को डेवलप करना बहुत जरूरी है, इंटर ग्रुप के रिलेशनशिप्स को, दो ग्रुप के आपस में रिलेशनशिप को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 1970s की बात है। 1970s में पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच आई थी। दे वांटेड अ फ्रीडम फॉर कश्मीर और वो कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे कि कश्मीर को फ्री कर दो, वहां पर ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता, ये वो बहुत सारी चीजें बोली। अब ये इंसिडेंट्स होने के बाद अब नरसिम्हा राव जो थे, नरसिम्हा राव परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अब किसको भेजें, किसको भेजें। तो उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे उनको चूज किया कि आप जाइए, आप यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दीजिए हमारे सरकार की तरफ से। अब आप ये सोचिए, प्रतिपक्ष के नेता होने के बाद पे भी नरसिम्हा राव ने अपोजिशन के लीडर को चुना एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया टू टेक दैट मैटर टू द यूनाइटेड नेशंस। तो जब आपके इंटर ग्रुप में रिलेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं तो आप आपके दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं और अपने दोस्त से भी ज्यादा आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जुहारी विंडो एनालिसिस में ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी किसकी क्या है और उस क्वालिटी के बेसिस पे आप उसके ऊपर अपने दोस्तों से भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एपिक में आपको मैं ले चलता हूं क्योंकि मैं महाभारत और ये रामायण, भगवत गीता, इन सब चीजों को भी बहुत पढ़ता हूं। तो उसमें भगवत गीता में एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि जब कुरुक्षेत्र की जो भूमि है जहां पर दिस लैंड में ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस युद्ध के होने से पहले अब कौरवों और पांडवों के बीच में ये डिसाइड होना था कि ये युद्ध कहां पर किया जाए। क्योंकि युद्ध होता था, अगर इफ द वॉर वुड हैव हैपेंड तो बहुत सारे लोगों की जान जाती और जान जाएगी तो इसका मतलब वो जमीन जो है वो हमेशा के लिए शापित हो सकती थी। तो ऐसी जमीन चूज करनी थी उनको जो ऑलरेडी शापित है। तो उस शापित जमीन को चूज करना प्लस उस नक्षत्र को चूज करना कि किस नक्षत्र में अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो ना तो वो कौरवों की साइड में जाएगा ना पांडवों की साइड में, वो न्यूट्रल रहेगा। बिकॉज इंडियंस लोग माइथोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे पुराने टाइम से। तो ये स्टोरी में मिलता है कि उस टाइम पे दुर्योधन ने कौरव वंश का होने के बाद में भी
उसने पांडवों के वंश में सहदेव को चुना। उसने कहा कि सहदेव को अच्छी नॉलेज है नक्षत्रों की, even though the person is our enemy, but I am sure that सहदेव will give the right advice। और ये लोग सहदेव के पास में गए, उनके साथ में भगवान कृष्ण भी गए, और उनको चूज करते समय ये बोला गया कि आप बताइए कि किस नक्षत्र में हमको युद्ध को स्टार्ट करना है। तो ये क्या था? इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। भले ही कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन उसके बाद में भी वो ट्रस्ट करते थे। शाम हो जाने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद एक भी आदमी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाता था। सुबह जब शंख बजता था उसके बाद ही युद्ध स्टार्ट होता था, चाहे वो रामायण हो और चाहे वो महाभारत हो। तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग डेवलप होती है। अगर आप आपके कॉम्पिटिटर के साथ में भी काम कर रहे हो और आपने अगर इस पे जोहारी विंडो एनालिसिस के थ्रू अगर अपने पर्सनालिटी पे पकड़ बना ली, तो कॉम्पिटिटर भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us now understand what actually model represents. So the Johari window model is also referred to as a disclosure or a feedback model of self-awareness, and by some people an information processing tool. Johari window actually represents the information, feelings and experiences, views and attitudes, skills and intentions, motivations, etc. within or about a person in relation to their group फ्रॉम आवर 4 पर्सपेक्टिव्स। अब यहाँ पर क्या होता है? 4 पर्सपेक्टिव होते हैं। वो 4 पर्सपेक्टिव क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हर एक इंसान की फीलिंग क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके व्यूज क्या है किसी चीज को लेके, एटीट्यूड क्या है, स्किल्स क्या है, इंटेंशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको जोहारी विंडो एनालिसिस के थ्रू क्लियर हो जाती हैं। एरियाज ऑफ मॉडल। अब बात करते हैं कि ये मॉडल के एरियाज कौन से हैं। वो जो 4 क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताए, आप आपके दिमाग में एक विंडो की एक इमेज लेके आइए। एक स्क्वायर विंडो है और उस स्क्वायर विंडो को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। ऑन द टॉप ऑफ इट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड 2 पार्ट है, और नीचे बॉटम में उसके 2 पार्ट है। ये इमेजिन करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। द 4 जोहारी विंडो पर्सपेक्टिव्स आर कॉल्ड एज रीजन्स और एरियाज। हर एक पार्ट को आपने रीजन या एरिया का नाम दे दिया इन क्वाड्रेंट्स में। Each of these regions contains and represents informations like feeling, motivation, etc. known about the person in terms of whether the information is known or unknown by the person. यहां पर इन 4 क्वाड्रेंट में आपको वो इंफॉर्मेशन भरनी है इंसान से रिलेटेड, उस पर्सन से रिलेटेड, जो या तो उसको पता है या उसको नहीं पता है। So let us now understand what are the 4 quadrants. So the 4 quadrants of Johari window are open area, blind area, hidden area and unknown area. Area, hidden area and unknown area. Open area talks about those qualities which are known to you and known to others. These are the qualities in the blind area which are not known to you but known to others. Hidden area talks about those qualities which are known to you but unknown to others. Unknown area talks about those qualities of yours which are neither known to you nor known to your people with whom you are working. Now let's go ahead and try to understand the details regarding the open area. So this is the first quadrant and this is called as Johari region 1. It is also known as the area of free activity. This is the information about the person's behavior, attitude, feelings, emotions, knowledge, experience, skills, views, etc. known by the person, that is the self, and known by the group, that is others. तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज आपकी ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉन वेजिटेरियन हैं, लोगों को भी पता है कि आप नॉन वेज खाते हैं और आपको भी पता है, राइट? आप गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको हाथों हाथ ले लेते हैं और आप उसमें काम करना चाहते हैं। यू आर सच ए पर्सन हु लव्स टू टेक द चैलेंजेस एंड हु लव्स टू डू द वर्क एंड हु लव्स टू जस्ट हेल्प अदर्स। तो ये लोगों को भी पता है, आपको भी पता है। सो दीज आर सच क्वालिटीज विच बिकम योर ओपन एरिया या अरीना भी बोलते हैं इसको। ब्लाइंड स्पॉट, इट इज द क्वाड्रेंट 2, it is Johari region 2 and it is also called as the quality which is known by others or the groups but not known by you. So as a person you are unknown about certain things but others knows about these qualities. So this is called as the blind spot. हर किसी इंसान के जीवन में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, कई ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर वो क्वालिटीज खराब हुई या वो क्वालिटीज लोगों को अगर अच्छी नहीं लगती, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चेन स्मोकर्स होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो जाने अनजाने लोगों को भी पैसिव स्मोकिंग करा रहे हैं।
ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो तो अपने उसमें सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, अपनी खुशी के चक्कर में कहीं पर भी स्मोक स्टार्ट कर देंगे। बट अगर उनका ही कोई कलीग है जो नॉन स्मोकर है या टी टोटलर है, उसको वो धीरे 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 वो चीजें बुरी लगेंगी, और इसकी वजह से क्या होगा, सेपरेशन चालू हो जाएगा या दूरियां बननी चालू हो जाएंगी। तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। अगर वही वो खुल के वो दूसरा पर्सन उसको बता दे कि जब आप स्मोक करते हो तो मुझे खांसी आती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो काइंडली आप स्मोक अवॉइड करेंगे, तो ये ब्लाइंड स्पॉट ओपन एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो चेन स्मोकर उसको करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, वो चेन स्मोकर अवॉइड करेगा किसी पब्लिक प्लेस में या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको वो सूट नहीं करता। हिडन एरिया टॉक्स अबाउट what is known to ourselves but kept hidden from others and therefore it is unknown to other। हर किसी की लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेसी। आप वो चीज अपने हस्बैंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने नेबर को, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ आप अपने तक ही रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पबजी खेलते हो तो आप उसका इश्तेहार नहीं देते लोगों को। आप लोगों को नहीं बोलते कि आई एम अ प्लेयर ऑफ पबजी, आई हैव रीच्ड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, राइट, आई हैव बिकम एस नाउ। ये चीजें मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, गुड हैबिट्स भी कह लीजिए या बैड हैबिट्स भी। सच हैबिट्स इफ नॉट नोन टू अदर्स और पर्पसफुली इफ यू आर अवॉइडिंग टू शेयर इट विद अदर्स, इट बिकम्स जस्ट योर हिडन एरिया। अब हिडन एरिया, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा ये कि अगर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो लोगों को आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, आपने उनको छुपा दिया तो अच्छी बात है। बट क्या होता है, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपने छुपा दी, जो अगर कंट्रोल में आ सकती थी आपने छुपा के रखी, इस वजह से वो आपके साथ चलती चली जाती हैं और वो एक हैबिट फॉर्म कर देती है, फिर आप उसके बगैर नहीं जी सकते। फॉर एग्जाम्पल टबैको एंड ऑल अदर काइंड ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। आज का यूथ, आज की जनरेशन, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो गलत रास्तों में, गलत संगत में पढ़कर उन चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं, बाद में वो लोगों से छुपाने लगते हैं। धीरे धीरे वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को छुड़ा पाना। तो हिडन एरिया भी एक ऐसा एरिया होता है, इसीलिए इसको रेड में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपने छुपा के रखी हैं मजे के लिए या कुछ और रीजन के लिए। जब आप उनसे छुपाते हैं लोगों से, तो उसके एंड रिजल्ट कई बार अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट है अननोन एरिया, क्वाड्रेंट 4। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, टैलेंट, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा दैट आर अननोन टू द पर्सन हिम और हरसेल्फ एंड अननोन टू अदर्स इन द ग्रुप। ये वो क्वालिटीज हैं आपकी जो ना आपको खुद पता है ना लोगों को पता है, राइट। तो ये आपकी अननोन एरिया में आ जाते हैं। अननोन एरिया में कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको भी नहीं पता थी कि आप कर सकते हो, दूसरों को भी नहीं पता थी, बट जब आप वो करने चलते हो तो आपसे बेटर कोई कर नहीं पाता। सो लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द अननोन फैक्टर्स। ये अननोन फैक्टर्स क्या होते हैं? So an ability that is underestimated or untried through lack of opportunity, encouragement or confidence or training, that are called as unknown factors. A natural ability or aptitude that a person does not realize that they possess. These are the unknown factors. A fear of aversion that a person does not know why they have, that is also called as unknown factor. And unknown illness is also some kind of unknown factor. Repressed or subconscious feelings, मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं अच्छी या बुरी, तो वो भी एक अननोन फैक्टर है, ना आपको पता है ना दूसरों को पता है। एंड देन कंडीशनड बिहेवियर और एटीट्यूड फ्रॉम द चाइल्डहुड। आपको बताया जाता है कि आपको घर टाइम पे आना है, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, किसी के साथ मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, कोरोना में मास्क है तो मास्क पहन के बगैर किसी से मुलाकात नहीं करना। ऑल दीज थिंग्स, ये आपको कंडीशन कर दिया जाता है कि आपको इसी हिसाब से काम करना है। लेकिन जब आप अलग हट के काम करने की कोशिश करते हो तो आपको मजा आने लगता है, आपको लगता है कि वाह यार ये भी लाइफ होती है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं ऐसी जो आपको नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब लाइफ का एक्सपोजर आता है उस टाइम पे आपको ये चीजें पता चल जाती हैं। कई बार लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। एक यूट्यूब में बहुत अच्छा एक इसके ऊपर एक ऐड है, आप जरूर देखिएगा। ये ऐड है एक बास्केटबॉल के ऑडिटोरियम का, जहां पर एक हाउस कीपिंग का पर्सन, उसको वहां का रेफरी उसको भगा देता है, कहता है कि चल यहां से भाग जा, और वो वहां पे उसको बास्केट करता, वो बॉल डालता है उधर। इस चीज को देखते हुए जब शाम को जब सब कोई अपने अपने घर चला जाता है, तब ये बंदा क्या करता है, ये वहां पर जाता है, ये वहां जाने के बाद उसका मेजरमेंट लेता है और बॉल को एक काफी डिस्टेंस से वो डालता है, सीधे मेजरमेंट करके एक अपना मैथमेटिक्स का इक्वेशन बनाकर। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि आप किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। कई बार लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटीज होती है, हिडन होती है, बिकॉज आपने उसको प्रेशराइज करके रखा, एक कुकर का ढक्कन लगा के रखा है, इसकी वजह से वो प्रेशर बनता जाता है और एक दिन वो फटता है, तो पता चलता है कि अरे वाह, इसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज थी जो किसी को नहीं पता।
महाभारत में ही एकलव्य करके एक ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है जिसने कभी लाइफ में किसी के अंडर में ट्रेनिंग नहीं ली। उसने केवल द्रोणाचार्य की फोटो रख के उसने दिन रात एक जंगल में अपना पूरा अनुशासन के साथ, अपना डिसिप्लिन के साथ जीवन जीने के साथ साथ उसने आर्चरी सीखी और वो इतना जबरदस्त आर्चर बन गया कि बोलते हैं कि एक तीर से उसने पूरे पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिया था। ये देखते हुए द्रोणाचार्य को डर लगा। उनको लगा कि इस दुनिया में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर, कोई आर्चर नहीं हो सकता। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उससे उसका अंगूठा मांग लिया। तो कई बार क्या होता है, आप किसी को अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही पर्सन कुछ ऐसी चीजें दिखा देता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ये अननोन एरिया भी हर किसी की लाइफ में आता है और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा। आपको अभी एकदम से नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आपको किसी को लीड करना है, लेकिन आपको एक अच्छा लीडर बना दिया गया या आपको एक पोजीशन पे बैठा दिया गया कि आपको देखना है और वहां पे आपने चमत्कार करने चालू कर दिए। यू हैव डन वंडर्स एंड मिराकल्स आफ्टर वर्किंग इन दैट पोजीशन जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ योर इनहेरिटेड क्वालिटीज एंड द स्किल्स व्हिच यू हैव, which probably were there in your subconscious mind but you have never ever worked on it because till the time it was underestimated and you were not thinking about it. So ये अननोन फैक्टर्स हैं, ये आपको लाइफ में याद रखने हैं। और ड्रॉबैक्स क्या हैं जोहारी विंडो के? सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, समथिंग आर परहैप्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेटेड लाइक मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम। आप जोहारी विंडो एनालिसिस करके किसी को ये नहीं कहोगे कि यार तुम्हारा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, तुमको येरोड़ा के पागल खाने में जाना चाहिए। सॉरी, यू कैन नॉट से दैट। तो कई बार होता क्या है कि आपको ये मेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ओपनली नहीं बोल सकते कि यार तू मेंटल है, तेरे से ये काम होगा नहीं, इसलिए मैं ये काम दूसरों को दे रहा हूं। देन सम पीपल में पास ऑन द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फर्दर एंड देन वी डिजायर। कई बार क्या होता है जोहारी विंडो में जब एनालिसिस करते हैं तो ग्रुप का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। एक बोलता है कि यार ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में अच्छा फीडबैक देना है, तो उसके ग्रुप में उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा उस पर्सन का, उसके हिसाब से लोग उसका अच्छा फीडबैक दे देते हैं, भले ही वो इंसान अच्छा ना हो, भले ही वो इंसान बायस्ड हो, भले ही वो इंसान अनकोऑपरेटिव हो। ऐसी भी चीजें देखने को आई हैं कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड को पूछा गया यार इसकी क्वालिटी क्या है, तो दूसरा फ्रेंड अच्छा ही बोलेगा। तो ये ऐसी भी केसेस आ जाते हैं। राइवलरी के केस में दूसरा अगर आपके अगेंस्ट में है तो वो आपकी कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो वो आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेगा, निगेटिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। So some people may react negatively. Using Johari window is useless exercise if it is not linked to the activities that reinforce the positive behavior or that correct the negative behavior. Johari window analysis करने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे लोगों को पॉजिटिव बिहेवियर कैसे रखना है ये सिखा ना पाए। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक वो सारी चीजें यूजलेस है। एंड सम कल्चर्स हैव अ वेरी ओपन एंड एक्सेप्टिंग अप्रोच टू फीडबैक एंड अदर्स डू नॉट। कुछ कल्चर में बहुत ओपन अप्रोच है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, आप उनको ओपनली बता दो। बट क्या आप अपने बॉस को बता सकते हो कि यार यू आर वेरी नर्डी काइंड ऑफ पर्सन, यू आर अ परवर्ट, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर इन दिस पर्टिकुलर जॉब, you don't dare to come and talk to me just because you are quite arrogant, you are not a very good team player, you are not cooperative, you are not supportive, such type of things you hesitate to speak to the boss unless and until you get burst because of any emotional outburst or because of any other situation। तो ये चीजें होती हैं। जोहारी विंडो का पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है, ड्रॉबैक भी है जो मैंने आपको बताया। कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं, बाय यूजिंग द जोहारी विंडो, ठीक है, one's personality can be improved and the person can be shown some better opportunities by improving the interpersonal behavior, by improving the motivation level of the person. All these things can help the person to overcome from a given situation and act as a very good team player। तो ये कंक्लूजन है। अब बात करते हैं कि आपके ब्लाइंड एरिया को कैसे रिड्यूस किया जाए। ये ब्लाइंड एरिया वो एरिया होता है विच इज नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू सेल्फ। तो ब्लाइंड एरिया को ओपन एरिया में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं when you want to get the real feedback from others। जब आप लोगों से कहेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया, ओपन फीडबैक दीजिए, तो कोई कुछ बोलेगा कि सर आप हेजिटेट करते हैं, आप फंबल करते हैं, आप स्टैमरिंग करते हैं, आपका जो वर्ड है ना वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जब आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया तो ये ओपन एरिया जो होता है इसकी बाउंड्रीज पुश होती चली जाती हैं एंड देन ये एरिना जो होता है जिसमें आपको खेलने को मिलता है, ये मैदान है जिंदगी का जो ओपन एरिया है जिसमें लोगों को भी पता है, आपको भी पता है कि क्या आप कर सकते हैं, तो आप एक प्लेयर की तरह खेलते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द हिडन एरिया बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ। अब आपने देखा कि आपका हिडन एरिया है, हिडन एरिया को आपको ओपन एरिया में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं
फ्री अरीना में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप अपने बारे में लोगों को एक खुली किताब की तरह शेयर करेंगे चीजों को। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका ये एरिया जो है ओपन वाला ये बढ़ता चला जाएगा और हिडन एरिया छोटा होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन अननोन एरिया इज लार्ज इट लीड्स टू स्मॉलर ओपन फ्री अरीना। जब आपका ये अननोन एरिया कि आप क्या कर सकते हो आपको खुद ही नहीं पता, जीवन में आप कहां जाना चाहते हो आपको खुद नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। लोग कहेंगे कि यार ये तो अनयूज्ड ब्रेन है, इसको तो पता नहीं और हमको भी नहीं पता कि कहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो केस में क्या होता है, आपका ओपन या फ्री एरिया जो है दैट बिकम्स नैरो एंड नैरोवर।